Hello students, good morning to all of you. So, as I have told you that the next topic binary operation is not in your syllabus. So, we are going to start with the miscellaneous examples related to the previous topics, right? So, let us do that examples. So, this example number 41 is if R1 and R2 are equivalence relation in a set A, show that R1 intersection R2 is also equivalence relation. जैसे कि आपको पता है कि इक्वलेंस रिलेशन क्या होता है. इक्वलेंस रिलेशन में आते हैं आपके पास तीन टाइप के रिलेशन, द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. If the relation is reflexive, symmetric and transitive, then the relation is said to be equivalence relation. तो यही हम प्रूव करेंगे. So जैसे कि आपको पता है, this is example number 41. As R1 is reflexive है R1 and R2 is also reflexive. अगर ये दोनों रिफ्लेक्सिव है तो इनकी इंटरसेक्शन जो कॉमन होगा, देन R1 intersection R2 is also reflexive, right? हमें ये तीनों चीजें प्रूव करनी है कि R1 intersection R2 is reflexive, this is symmetric and transitive. Okay, similarly also as R1 is symmetric. क्यों है symmetric? Because it is equivalence, so that's why this is symmetric. R1 is symmetric and R2 is also symmetric. Then their intersection R1 intersection R2 is also symmetric. ये हमने दोनों चीजें प्रूव कर दी, दो चीजें प्रूव कर दी कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है. As R1 is transitive and R2 is also transitive, then R1 intersection R2 is also transitive, right? Transitive. If the relation is reflexive, symmetric and transitive, so therefore it shows that R1 intersection R2 is an equivalence relation. So this is the example number 41. So let us do the next example. Example number 42. This is also related to equivalence relation. Let R be the relation on set A of ordered pairs of positive integers defined by x, y related with the u, v if and only if x into v is equal to y into u. Show that R is a equivalence relation. तो आप देखेंगे, try to understand this question is very interesting question and this question is important also, important in the examination point of view. This is very important example. So there are two pairs, one is xy, this is related with u into v, u comma v, right? So it is defined as if and only if it is x into v is equal to y into u. आपने ये आपके पास रिलेशन है, This is example number 42. Clear?
this pair and this pair, these two pairs are related such that x into v is equal to y into u. ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, मैं फर्स्ट इंटू थर्ड लिखूंगा, फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड, फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड, राइट। सो जैसे कि आपने इसमें इक्वलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव प्रूव करोगे। क्या प्रूव करोगे? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आप एक एलिमेंट लेंगे, लेट x, y belongs to the set of ordered pairs of positive integers, right? Ordered pair of positive integers. So let x, y related to x, y. कैसे रिलेट करेंगे इसको? विच इम्प्लाइज एंड इम्प्लॉयड में। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये दो पेयर इस तरह रिलेट किए हैं, तो हम इन दो सेम पेयर्स को कैसे रिलेट करेंगे? फर्स्ट इंटू फोर्थ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। एज यू नो दिस इज ट्रू, विच इज ट्रू, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। बहुत इजी है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? सो सबसे पहले आपने ये दो पेयर देखने, इसको दो पेयर्स को कैसे रिलेट किया है? ऐसे रिलेट किया कि फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। तो ऐसे ही मैंने रिफ्लेक्सिव के केस में दोनों पेयर सेम लेने हैं। जब सेम लेने हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है? First into fourth is equal to second into third. So which is true for positive integers? So we can say this relation is reflexive. Right? Similarly, next is symmetric. Symmetric prove करने के लिए हम कैसे prove करेंगे symmetric को? Let if से शुरू करेंगे। If x y related to u v which implies and implied by, कैसे रिलेटेड है? फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, राइट। सो इसको आपने इस तरह रिलेट किया है। अब हमें ये प्रूव करना है कि u, v रिलेटेड टू x, y, तो ये सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें क्या प्रूव करना है आपको? u इंटू वी, राइट। सो इसमें आपको इसको पहले लिख देते हैं, y u को पहले लिख देते हैं और x v को इस साइड लिख देते हैं। मैंने चेंज कर दिया, इस तरफ को कर दिया। ठीक है, वी कैन चेंज इट। अब मैं क्या करूंगा, ये आपके पास क्या होता है? कॉम्पिटेटिव होता है, तो इसको लिख सकते हैं u इंटू वाई इज इक्वल टू v इंटू एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटू फोर्थ हुआ और ये सेकंड इंटू थर्ड हुआ। सो विच इंप्लाइज दैट u, v इज रिलेटेड विद x, y, राइट। y, x और x, y। क्लियर? u into is it clear? So okay, now let us prove the third transitive प्रूव करने के लिए थर्ड हमने क्या प्रूव करना है? ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? इफ x, y related with the u, v implies and implied by xv is equal to yu,
ये तो डेफिनेशन थी, एंड यहाँ पे एंड लगाएंगे और सेकंड पेयर जो है वो थर्ड पेयर से रिलेट करेंगे। इसको हम कोई और लिख देते हैं, s, t लिख देते हैं, राइट, क्लियर। सो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, क्लियर। सो दीज आर द two equations. This is first equation, this is second equation. By simplifying first and second, you have to prove that first pair is related with the third pair, clear. First pair related with the second pair as this, and second pair related with the third pair as this. So we have to prove that first pair related with the third pair as xt, क्लियर। सो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन दिस इक्वेशन वी हैव x अपॉन y इज इक्वल टू u अपॉन v, राइट, एंड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी हैव u अपॉन v इज इक्वल टू s अपॉन t. So from these two equations, this is third equation, this is fourth equation. From 3 and 4 we have x upon y is equal to s upon t, क्योंकि x upon y की वैल्यू u upon v की वैल्यू x upon y भी है और u upon v की वैल्यू s upon t भी है, इसलिए ये दोनों सेम हो गए। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट विल बी गेट, x इंटू टी इज इक्वल टू y इंटू एस, क्लियर। तो ये बन गया फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। सो इट मीन्स दिस इज x y is related with the but s comma t. So what does it mean? It means the first pair is related with the third pair. So from these we have this transitive. So this relation is reflexive, symmetric and transitive. So that's why this is equivalence relation. Okay. So this is very simple. Next one. Next I'm doing example number 44. Let us do example number 44 now. Example number 44 is, try to read that question. Example number 44. 44th example है आपके पास, let f from x to y be a function, define a relation r in x given by r is equal to a comma b such that fa equal to fb. Examine whether r is an equivalence relation or not. आपने ये चेक करना है कि r एक equivalence relation है कि नहीं। सो इसमें आपके पास रिलेशन को डिफाइन किया है। द रिलेशन इज डिफाइंड एज, r को कैसे डिफाइन किया है, ऐसा पेयर a comma b such that f of a is equal to f of b. क्लियर। अब हमें ये रिलेशन बताना है कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तीन चीजें चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो पहला केस रिफ्लेक्सिव चेक करना है। इट मींस दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। एज एफ एज कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखिए बिल्कुल इजी है। एज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, इट मींस जो a कॉमा a है वो उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये तो रिफ्लेक्सिव है भाई, ठीक है। सेकंड इज सिमेट्रिक। नाउ सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एज
f of a as a comma b belongs to the relation such that f of a is equal to f of b, ऐसे डिफाइंड है ना। तो अगर एफ ए एफ बी के बराबर है, देयरफॉर एफ बी जो है एफ ए के बराबर होगा कि नहीं? अगर ये बराबर होगा इट मींस क्या हो गया कि जो b कॉमा a है वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इट मींस दैट दिस इज सिमेट्रिकल रिलेशन आल्सो। तो ये सिमेट्रिकली है। क्लियर? अब ट्रांसिटिव देखना है आपको। थर्ड केस ट्रांसिटिव के केस में, थर्ड केस ट्रांसिटिव के केस में हम लिखेंगे एज एफ ए इज इक्वल टू एफ बी एंड एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। एक और एलिमेंट लेते हैं सी। तो अगर एफ ए एफ बी के बराबर है, एफ बी एफ सी के बराबर है, देयरफॉर एफ ए जो है वो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। सो a comma c also belongs to the relation. So the relation is transitive. So it is transitive also. It is transitive. Hence this relation is equivalence relation. This relation is equivalence relation. Clear? So you have to show that the relation is equivalence, means you have to examine whether the relation is reflexive, symmetric and transitive, right? So okay, so next example number 45, this is not in your syllabus because this is the question related to binary operation. Now next example is example number 46. Find the number of all 1 functions from set A to itself. A आपके पास given है 1 2 3 2, right? And this function f from A to A itself. ये जो फंक्शन है इसमें कितने 1 फंक्शन बना सकते हैं? कितने 1 फंक्शन बना सकते हैं? सो वी कैन यूज परमुटेशन हियर। आपके पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, राइट? 3 एलिमेंट्स हैं। सो इसमें आप 1 फंक्शन कितने बना सकते हैं? ठीक है, 1 फंक्शन आप इसमें फॉर्मूला होता है, जैसे A to A है ना, तो A has n elements, so its formula is npn, या you can say n factorial। तो आपने सीधा फॉर्मूला याद रखना है, when number of 1 functions from A to A having n elements in it, so its formula is npn, that is n factorial, right? n factorial. So here n is equal to 3. So here the number of 1 functions from A to itself is 3 factorial, that is equal to 6. So this is the right answer. So this was example number 46. Okay ji. Now next example number 47 is, let A is equal to 1, 2, 3, then show that the number of relations containing 1 2 2 3 which are reflexive and transitive but not symmetric is 3. Yes, ये भी आपको समझना है। एग्जाम्पल नंबर 47th एग्जाम्पल है आपके पास, जिसमें कि
फंक्शन आपके पास ए की वैल्यू वही दी हुई है 1,2,3 तीन एलिमेंट्स दिए हैं सेट में। क्लियर? सो एफ जो फंक्शन है वो ए टू ए है। और अब आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, दिस इज रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। आपने बताना है कि इसमें तीन रिलेशन बना सकते हैं हम, जिसमें 1,2 और 2,3 पेयर जो है वो इंक्लूड हो, जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो। ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए। यानी कि आपने ये शो करना है कि इस सेट के साथ ए टू ए वाले रिलेशन तीन बनेंगे, जो कि ये इसमें इंक्लूड होंगे ऑलरेडी। ठीक है? सो आई हैव शोन यू दिस फर्स्ट रिलेशन। देखिए फर्स्ट रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव चाहिए आपको, है ना? रिफ्लेक्सिव में ये तीनों एलिमेंट्स के सेम पेयर तो बनेंगे, ये हमेशा बनेंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। 1 1 2 2 3 3 ये पेयर तो इसमें आएंगे। क्लियर? अगर ये 1,2 इसमें ऑलरेडी गिवन है, मतलब इसमें ऑलरेडी लोडेड है, और 2,3 भी इसमें लोडेड है। अब अगर हम देखें कि ये पेयर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए इसका मतलब 2,1 इसमें नहीं होना चाहिए, 3,2 इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है? अगर 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 इसमें डालना पड़ेगा आपको। 1,3 इसमें डाल देंगे तो ये फंक्शन, ये जो आपका रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये हम यहां से बता सकते हैं कि ये आपके पास एक रिलेशन, पहला रिलेशन बन गया। तीन रिलेशन बताने हैं आपको। ठीक है? अब ये 1 1 पेयर, 2 2 3 3 ये तीन, ये तो सभी में आएंगे क्योंकि ये तो हमें कंपल्सरी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि रिफ्लेक्सिव है केस। रिफ्लेक्सिव भी चाहिए, सिमेट्रिक नहीं चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए। अब 1,2 तो ऑलरेडी कंपल्सरी है, ये तो डालने पड़ेंगे। ठीक है जी? 1,3 तो ऑलरेडी डालना पड़ेगा बिकॉज दिस इज ट्रांजिटिव। क्लियर? अब ध्यान देना आपको, अब इसमें अगर मैं 3 1 डाल देता हूं, राइट? अगर मैं इसमें 3 1 डाल देता हूं तो इसमें देखते हैं। ओके, तो इसमें हमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव चाहिए, सिमेट्रिक नहीं चाहिए। तो देखिए इसमें 1 2 है, मैं इसमें 2 1 डाल देता हूं। चलो ये तो सिमेट्रिक हो गया, बट अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं तो मेरे पास, अब मैं जब इसको ऑब्जर्व करूंगा तो ये रिफ्लेक्सिव है इन तीनों के कारण, ट्रांजिटिव है बिकॉज 1 2 2 3 या 1 3 भी है, 1 3 है, राइट? अब इसमें आपके पास 1 2 2 1 है तो 1 1 भी है, 2 1 1 3 तो 2 3 भी है। यानी कि ये रिलेशन भी आपके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम एक और रिलेशन, तीसरा रिलेशन बनाएंगे कि जो कि आपका इसको फुलफिल करता हो। तो देखिए आपके पास 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, ये तो कंपल्सरी रिफ्लेक्सिव के लिए। और ये दो पेयर तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 1 2 भी है और 2 3 भी इंक्लूडेड है। क्लियर जी? अब आपके पास
अगर मैं इसमें 3 2 डाल देता हूं, देखिए अगर 1 2 2 3 डाला है तो हमें 1 3 तो डालना पड़ेगा बिकॉज ट्रांजिटिव है। क्लियर? पिछले केस में हमने 2 1 इसका रिफ्लेक्स इसका सिमेट्रिक डाला, अब हम इसका सिमेट्रिक डाल देंगे। यानी कि अगर हम 3 2 डालते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम 3 2 डालते हैं तो ये आपके पास ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी। सो अगर मैं यहां पे 3 2 डालता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे 3 2 डालता हूं तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? बिकॉज 1 2 है आपके पास, 2 1 इसमें नहीं है। इसमें 3 2 और 2 3 सिमेट्रिक तो शो कर रहे हैं, बट ये इसमें सिमेट्रिक नहीं शो कर रहा है और ये इसमें सिमेट्रिक नहीं शो कर रहा है। क्लियर? 3 1 इसमें नहीं है। सो these are the three relations which are reflexive and transitive but not symmetric. आपने 3 चीजें इसमें प्रूव करनी है, राइट? So let us do the next example. Example number 48. ऐसे ही सेम एग्जाम्पल है जी आपके पास। अब इक्विवेलेंस रिलेशन आपको देखना है, ए सेट सेम है आपके पास 1 2 3 और रिलेशन जो है वो फ्रॉम ए टू ए है। अब हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए और हमें इक्विवेलेंस के साथ साथ 1 2 और 2 1 इंक्लूडेड है, 1 2 2 1 इंक्लूडेड है। ठीक है जी, 1 2 और 2 1 इंक्लूडेड है, तो हमें ये बताना है कि इसमें कितने रिलेशन बनते हैं। ये है एग्जांपल नंबर 48। इसमें 2 रिलेशन बनेंगे जो कि इक्विवेलेंस होंगे। क्लियर? तो पहला रिलेशन मैं बना रहा हूं इसमें R1, इसमें रिलेशन में आपके पास 1 1 तो आएगा जी, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, बिकॉज दिस इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? और ये 2 कंपल्सरी हैं, 1 2 है पेयर और 2 1 भी कंपल्सरी है। तो अगर मैं इसको बस सिर्फ इतना ही लिखता हूं तो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव इस करके होगा बिकॉज ऑफ दीज 3 पेयर्स 1 1 2 2 एंड 3 3। सिमेट्रिक इस करके होगा बिकॉज 1 2 2 1 और ट्रांजिटिव इस करके होगा 1 2 2 1 1 1, राइट? सो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और सेकंड रिलेशन आपका होगा जी 1 1 2 2 3 3, ये तो कंपल्सरी है जी, 1 2 2 1, these are the compulsory pairs in this relation. Now 1 2 2 1, अगर मैं इसमें एक लेता हूं 2 3, अगर मैं 2 3 पेयर इसमें इंक्लूड करता हूं तो मेरे को 3 2 भी डालना पड़ेगा। क्लियर? अगर मैं 3 2 डालता हूं तो 2 1 है तो मेरे पास 3 1 भी चाहिए, मेरे को 3 1 है तो 1 3 भी चाहिए इसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए। सो आपके पास ये 2 ऐसे रिलेशन हैं जो कि इक्विवेलेंस होंगे और ये 2 चीज उसमें 2 पेयर्स उसमें इंक्लूडेड है, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो देयर आर 2 relations, 2 equivalence relations which include these 2 pairs 1 2 and 2 1 which are equivalence relation. Clear? Okay. Next 49th example is based on binary operation. Now I am doing the 51st example. Example number 51. Now I am doing example number 51. 51 is consider a function f from 0 pi by 2 to r. You can read the question. The question, example number 51. Example number 51.
consider the function f from 0 comma pi by 2 to the real number r given by fx is equal to sin x. This is the function given, and g is the another function. This is also from 0 comma pi by 2 to r. It is defined as g of x is equal to cos x, right? Now you have to show that this f and g are 1 1, but f plus g is not 1 1. हमें ये शो करना है कि f x भी 1 1 है, g x भी 1 1 है, ठीक है जी, बट इनका सम जो है दैट इज नॉट 1 1. सो as the domain of the function is 0 comma pi by 2, so we can say in this interval 0 comma pi by 2 fx is equal to sin x is 1 1. ये 1 1 है. Why this is 1 1? Because in this interval every element has its distinct image. So because every number between this interval 0 comma pi by 2 has its distinct image, that's why this function, that जैसे कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर आप ले लीजिए sin 30, sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, sin 45 1 by रूट 2 होता है, sin pi by 2 1 होता है. सो एवरी एंगल पे, हर एक एंगल पे इस इंटरवल में हर एक की अलग अलग वैल्यू आएगी, इस करके ये 1 1 है. सिमिलरली in interval, similarly gx, that is cos x, is also 1 1 in the interval 0 comma pi by 2, right? but जब हम इसका प्लस करेंगे f प्लस g क्या होगा? f प्लस जी एक्स क्या होगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जब हम देखेंगे तो इन दोनों में, इस इंटरवल में वी कैन से इन द इंटरवल 0 comma pi by 2, राइट, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है. मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0 फिल करता हूं, ठीक है, 0 प्लस कॉस 0 1, 0 प्लस 1 1, तो यानी कि, और अगर मैं इसमें पाई बाय 2 फिल करता हूं तो साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2, दिस इज आल्सो 1. सो इन दिस इंटरवल 0 एंड पाई बाय 2 हैव सेम इमेज, दैट इज 1. क्योंकि साइन 0 प्लस कॉस 0 कितना होता है? 1. क्योंकि साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2 ये भी 1 होगा. तो यानी कि 0 की वैल्यू फिल, अगर मैं x की जगह पे 0 फिल करता हूं तो भी आंसर 1 आता है, अगर मैं x की वैल्यू पाई बाय 2 फिल करता हूं तो भी आंसर 1 आता है. इस करके ये शो हो रहा है कि the two elements have a same image. That's why this sum f plus g is not 1 1 function. So this is not 1 1 function. So you can say, now let us continue with the next this miscellaneous exercise of this chapter number 1.